Good morning, everyone. Our today's topic is properties of carbon compounds. Properties of carbon compounds. As we already have discussed about the carbon compounds, that the compounds which are formed by sharing of electrons are known as covalent compounds. And carbon compounds are covalent compounds. So all the carbon compounds मीन्स कार्बन के साथ किसी दूसरे एटम ने या एलिमेंट ने अगर शेयरिंग करके कोई कंपाउंड बनाया है देन दैट कंपाउंड्स आर नोन एज कार्बन कंपाउंड्स एंड दीज आर कोवेलेंट कंपाउंड्स. सो सिंपली कार्बन कंपाउंड का मीनिंग है कार्बन के कंपाउंड्स. बट कार्बन के कंपाउंड्स कैसे होते हैं? कोवेलेंट्स होते हैं, तो वो शेयरिंग करके बनते हैं. देयर फिजिकल स्टेट, दे एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. सो जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, बेसिकली जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, यहाँ कार्बन की जगह कोवेलेंट कंपाउंड्स ही आ जाना चाहिए. यहाँ कई बार आपसे क्वेश्चन में ऐसा ही पूछ लिया जाता है कि वो कार्बन कंपाउंड्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज बताइए, या कोवेलेंट कंपाउंड की बताइए, तो वो सेम है. सो दे एग्जिस्ट, बेसिकली दीज प्रॉपर्टीज आर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स. They exist as solid, liquid or gases. These are the examples of solid. This one is liquid and these are gases. Their melting and boiling point. Low melting and boiling point. Why the melting and boiling point is low? As we have already discussed that because the bonding between the covalent compound formation is comparatively weak. So that's why the melting and boiling point is weak. क्योंकि जितनी वीक बॉन्डिंग होगी उसको तोड़ने के लिए उतनी ही कम हीट की रिक्वायरमेंट होगी, और जितनी कम हीट की रिक्वायरमेंट है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा. Electrical conductivity, do not conduct electricity as they do not have free ions in their aqueous solution. Yes, I think this point is very much clear. We know that for passing of electricity free ions are required, electrons are required. So these ions do not form in the covalent compounds. Solubility, usually insoluble in water. वो insoluble होते हैं वाटर के अंदर, but soluble in organic solvent. So the solubility, they usually insoluble in water but soluble in organic solvents. I think this one is clear to you. Let's move to the next one. Allotropes. Allotropes of carbon. Allotrope is a you can say kind of property of carbon in which carbon can be present in different forms in nature. But due to the different forms, that means all are carbon, but due to the arrangement of carbon atom in different form, their properties will be different. Basically, their physical properties will be different. So what do you mean by allotropes? So allotropes, basically allotropes are the different form ऑफ कार्बन. क्योंकि हम कार्बन के पढ़ रहे हैं तो मैं आपको उसी से के बेसिस पे बताऊंगी कि कार्बन की एक से ज्यादा फॉर्म जो नेचर में मिलती हैं जो दिखने में एकदम डिफरेंट हैं, दीज आर द एलोट्रॉप्स. एंड इस फिनोमिना को बोलते हैं एलोट्रॉपी. सो व्हाट इज एलोट्रॉपी? द फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ वन एलिमेंट into two or more than two different physical form due to their different physical properties but their chemical properties are identical. So ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें कोई एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में प्रेजेंट होता है नेचर में और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं बट केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं. देखिए केमिकल प्रॉपर्टी तो उसमें प्रेजेंट एटम की वजह से होंगी. अब हमने यहाँ 3 डिस्कस किए हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेंस. डायमंड भी कार्बन का बना हुआ है, ग्रेफाइट भी कार्बन का बना हुआ है, फुलरेंस भी कार्बन का. तो जब ये तीनों बने ही सेम एटम के हैं तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट हो ही नहीं सकती. सो देयर केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी सेम. बट क्योंकि कार्बन का अरेंजमेंट डिफरेंट है इन ईच फॉर्म,
तो अरेंजमेंट की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी. सो दीज आर द एलोट्रॉप, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेंस. एंड क्योंकि कार्बन इन फॉर्म्स में प्रेजेंट है तो इस फिनोमिना को बोलते हैं एलोट्रॉपी. What are allotropes? As I have discussed with you, allotropes are elements which are chemically identical. Identical means एक जैसे, but they differ markedly in their physical properties. Means वो अपनी physical properties में different हैं. Diamond and graphite, these are the two allotropes of carbon, different in their physical properties. Fullerene भी है, but हम यहाँ basically difference diamond graphite में ज़्यादा करते हैं because these are the known form of carbon जो हम सभी जानते हैं. But fullerene जो recent ही discover हुई है carbon की नई allotropy form, that is also different. Physical properties of diamond and carbon. देखिए physical अपीयरेंस में डायमंड ट्रांसपेरेंट, ग्रेफाइट ब्लैक एंड शाइनी. ग्रेफाइट वो होता है जो आपकी पेंसिल के लिड में है, जो ब्लैक पेंसिल होती है ना जिससे हम ड्राइंग करते हैं, वो ग्रेफाइट है. हार्डनेस, डायमंड इज वेरी हार्ड, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, वेयर एज ग्रेफाइट सॉफ्ट, स्लिपरी टू टच. थर्मल कंडक्टिविटी, डायमंड वेरी पुअर, ग्रेफाइट मॉडरेट. यस, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है बट डायमंड नहीं. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सॉरी थर्मल कंडक्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पुअर एंड इसकी कंडक्टिविटी है गुड, वेरी गुड. डेंसिटी, इट इज हाईली डेंस एंड दिस वन इज नॉट, उसकी डेंसिटी कम है. यूजेस, इट इज यूज्ड इन मेक ज्वेलरी, ड्रिलिंग, जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी डायमंड टूल्स इस्तेमाल करते हैं, आई सर्जरी, एंड द डेंटिस्ट ऑल्सो यूज दैट. ग्रेफाइट ये ड्राई सेल में यूज होता है, इलेक्ट्रिक आर्क बनाने, लुब्रिकेंट्स में, पेंसिल की लेड बनाने में यूज होता है. सो फिजिकली दीज आर डिफरेंट बट केमिकली दे आर सेम. हाउ डायमंड एंड ग्रेफाइट्स आर केमिकली डिफरेंट? द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट आंसर दिस क्वेश्चन. ऑब्वियसली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उन एक्सपेरिमेंट में सबसे पहला आया कि डायमंड को हीट करो या ग्रेफाइट को हीट करो in the presence of air. They burn completely to form carbon dioxide. That means both are made up of carbon, so both do same chemical property. Equal quantities of diamond and graphite when burned produced exactly the same amount of carbon dioxide. देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस करते ही करते हैं बट सेम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं. सो वी कैन से डायमंड एंड ग्रेफाइट केमिकली आर सेम बट फिजिकली डिफरेंट. और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं एलोट्रॉपी. और अब कार्बन के अगर एलोट्रॉप्स की बात किया जाए तो डायमंड ग्रेफाइट है, फुलरेंस भी एलोट्रॉप है. Why the physical properties of diamond and graphite are so different? देखिए, it is due to the difference in the arrangement of carbon atom in diamond and graphite. ये graphite है, graphite में sheets की form में एक layer, ये दूसरी layer, ये एक और layer और ये एक और layer. तो ये layers की form में arrange हैं. डायमंड में ये एक के साथ दूसरा, और बेसिकली अगर आप इसको देखो तो एक डायमंड कैसे जुड़ा हुआ है मैं आपको दिखाती हूँ इंडिकेट करके. सो डायमंड का अरेंजमेंट कैसा है? सपोज वी आर टेकिंग दिस वन डायमंड, ये वाला देखिए, इस एटम की बात करते हैं. ये एटम यहां अरेंज है, ये एटम यहां अरेंज है, ये एटम यहां अरेंज है और ये एटम फिर यहां भी अरेंज है. दिस बेसिकली इनका अरेंजमेंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज एटम. सो सॉरी, let me explain it. I will show you the formation of one carbon, one diamond atom. Carbon with one single bond, that is also carbon with one single bond, carbon with one single bond, again it is carbon, and with one single bond again it is carbon. How many carbons are there? एक कार्बन एटम से चार जुड़े हुए हैं, 1 2 3
4। आई थिंक आपको क्लियर होगा क्यों 4 जुड़ते हैं, क्योंकि कार्बन की कोवेलेंसी 4 है, तो कार्बन 4 जो है कार्बन के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाता है सिंगल बॉन्ड के थ्रू। तो ये देखिए मैंने 1 1 लाइन लगाई है, दिस इज द सिंगल बॉन्ड। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज टेट्राहेड्रल एंगल। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मींस टेट्राहेड्रल, टेट्रा मींस 4, तो 4 जगह से जुड़ा हुआ है। So these are the arrangement of carbon atom in diamond and graphite. So due to this arrangement they are different. Otherwise they do the same chemical property and physically they are different due to this arrangement. Okay, this one will be our next topic. I will start it in the next session. I hope you understand. Goodbye everyone.